السلام علیکم جی۔ یا علی مدد بھائی جی بھائی السلام جی سید بھائی جی کیسے ہیں جناب؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں ذکر سن رہا تھا آپ کے، تو بہت ہی احسن انداز سے یہ بھائی جو ہیں، ان کا نام نہیں آتا مجھے، لیکن بہت احسن انداز سے یہ حوالے دے رہے ہیں، اور میں خود بھی طالب علم ہوں، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا، تو میں کا سن رہا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بھائی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں آیا تھا، میں نیچے تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور آدمی بھی لوگ بیٹھے تھے، میں نے ریکویسٹ کری، لیکن اس ٹائم تو نہیں تھی نا ایکسیپٹ ہونی، کیونکہ آدمی پورے تھے۔ اب جب موقع ملا مجھے تو میں آیا، میں نے بھی کہا کہ بھائی میں بھی کچھ بیان کروں، کچھ آپ کو سناؤں، کچھ آپ سے سنوں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بولیں؟ کچھ بھی میں نے کہا کہ بھائی واقعات آئمہ اطہار علیہ السلام کے بے شمار ہیں، تو کچھ بھی واقعہ آپ سنائیں، کچھ میں سناؤں گا، اسی طرح جس طرح رسول خدا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، مولا علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو میں بھی عبادت کرنے آ گیا، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جی تفضل فرمائیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ ذکر سننے آیا ہوں میں آپ کے پاس یہاں پہ، تو کوئی واقعات سنائیے مجھے، یہ حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں، حوالہ پتہ نہیں کب ملے گا ان کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی فرمان سنائیں یا واقعہ سنائیں کوئی۔ جی آج ہی آئے ہیں آپ، پہلے سنیں دیکھیں اور پھر انشاءاللہ فالو کر لیں، ہم تو روزانہ ہی ذکر ہر وقت ہوتا ہے بھائی۔ میں تو ہاں پہلی مرتبہ آپ کو یہاں پہ بڑھا کے دیکھو، چلیں آپ ابھی جی۔ ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ہمیں کون لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر کون سوال کرتے ہیں اور کون جواب دیتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی علم ہو۔ جب آپ کو علم ہو صحیح، جائے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ، بلکہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں۔ جی اور ٹھیک، جن کا آپ کو نام نہیں آ رہا، ان کا نام ہے باب امام، ٹھیک ہے، یہ سید ہے، اور ماشاء اللہ، جی یہ اپنی براڈ بھی لگاتے ہیں، اور ان کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے باب امام کے نام سے ہی۔ تو ٹھیک، بہت سے موضوعات ہوتے ہیں، روز ہی موضوعات کوئی نہ کوئی ایک لے کے آتے ہیں، اور اس کے اوپر پینل بیٹھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو اس سوال کے رد بھی کرتے ہیں، کچھ ایڈ بھی کرنا چاہتے ہوں گے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائبریری ہے ان کی، اور یہاں پہ ماشاء اللہ۔ تقریباً ہر کتاب موجود ہے، ہوں، اور یہیں پہ سید ڈیلی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور فرامین امام معصومین علیہ السلام سے ہمیں مستفید کراتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت جزاک خوب۔ اللہ جی، آپ فالو بھی کر لیں، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اسی نام پہ، تو پھر انشاءاللہ چکر لگاتے رہیں، صحیح، کوئی ٹھیک ہے، کوشچن ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ اور اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا سوال ہو تو بلا جھجک آپ آئیں، اور پینل میں نیچے آپ لکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کا آپ کو صحیح، جواب انشاءاللہ بہتر ہے، تسلی بہتر بخش ہے آپ کو جواب ملے گا۔ جی، ایسے ہیں۔
काज़मी भाई मसरूफ़ हैं आप? नहीं सर, नहीं। आप जब तक बाब इमाम मसरूफ़ है तो जब तक हम ये खामोशी तोड़ते हैं ज़िक्र मौला के ज़रिए। जी जी, तो बात करें जनाब। आपने जो है वो हदीस पढ़ी होगी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि ए इंसान तुझ में एक आलम अकबर समाया हुआ है, बड़े अच्छे से है ना? और तो इस पे मैंने बड़ा काम किया हुआ है। बस जो भी रिसर्च है आपकी मैंने आपको छेड़ा इसीलिए इस पे। इस आलम अकबर को जो है जहान अकबर के नाम से अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे जी जी जी। तो मेरी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वीडियो इसी मौजूद के ऊपर है कि मैंने इसके ऊपर बाब ईमान क्या किबला ने मुझे आदि से दी थी और इस जहान अकबर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि जहान अकबर किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो जहान अकबर में सिर्फ इतना, मैं सिर्फ चंद जुमले आपके साथ शेयर कर लूंगा अपनी ओर से। जी 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 ज़रूर। इंसान के अंदर जो है, जो आपका सिर्फ डीएनए है, ये लच्छेदार होता है। जैसे वो नहीं होता, एक स्प्रिंग नहीं होता। जी जी जी। तो अगर अगर इस डीएनए का जो इसका अगर पैकेट खोला जाए, एक डीएनए, एक की बात कर रहा हूँ जी, और इसको अगर हम इस लच्छे को खोल दें और इसको, और इसमें जो इल्म है उसको अगर हम A4 कागज पे लिखे ना, जो स्टैंडर्ड कागज होता है प्रिंटर का, जी जी, तो ये 57 कितने होते हैं? 57 अब बिलियन जो होता है उर्दू में अरब नहीं होता, खरब होता है। 57 खरब किलोमीटर इसका जो है फासला बने। अल्लाह अकबर। एक साल का बता रहे हैं आप ये? एक का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद जो आपका अंदर जो सेल्स हैं उनकी तादाद है 37 होता है ना, 37। जी जी। 37 ट्रिलियन है। अभी तक जितने सितारे और सयारे हमें मालूम है ना जी, उनकी तादाद जो है वो 400 अरब है, जबकि इंसान के अंदर ट्रिलियन सेल्स। हाय 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 हाय। तो जो आसमान पे है उससे ज्यादा मेरे अंदर है, उससे कई गुना ज्यादा मेरे अंदर है। हाय हाय हाय। और अगर इंसान की तमाम रगों को सीधा कर दिया जाए तो कायनात से बाहर चले जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आपको बिल्कुल मुख्तसरन करके मैंने सारी चीजें बताई। और एक इंसान के अंदर जो ये 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, इस हर सेल के अंदर इशारिया 0.07 वोल्टेज का करंट है। अल्लाह। तो 0.07 को जब आप 37 ट्रिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे रुए जमीन के ऊपर जो बिजली इस्तेमाल होती है ना, एक साल के लिए काफी है। इसमें हर एक चीज शामिल है। ये एक इंसान है, ये एक, अभी तो ये तो मेरे जैसों की वो है, मैंने भी मेरे जैसों की वो है कंपाइलेशन है। ये तो अभी आपको मैंने बिल्कुल हल्का सा बताया। तो जो बाहर है ये जहान सगीर है, आप और मैं जहान अकबर है। जी जी जी। ये जो आंख आपको नजर आ रही है, इसके और दिमाग के दरमियान जो है तकरीबन 11 मिलियन रगें हैं, जिनके ऊपर जो है हर रग के ऊपर जो है तकरीबन आप कहते हैं कि 5 से 7 जो है ग्रह लगी हुई हैं। तो ये तकरीबन जो है 77 मिलियन ग्रहों के साथ वाबस्ता चीज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। आप किसी नासिबे से पूछें कि मेरे ये तो अभी साइंस को पता चली है, अभी ये मेरे जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम कहाँ से कहते थे, उनसे पूछा, हमें तो पता है। ये सिर्फ 4-5 चीजें आपको बताई हैं मैंने। ये देखें कि वसअत कितनी है और ये जुमला कितना मुख्तसर है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और इसकी वसअत देखें कि क्या है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए बंदा कि क्या मालिक की ज़ात मुबारक। अल्लाह अकबर। बाब ईमान सर ने मुझे एक दफा चमगादड़ के ऊपर एक बात बताई। मेरे चमगादड़ के ऊपर एक पूरा वो किया हुआ है, एक साइंटिफिक सही। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खुतबा भी है। जी बिल्कुल, वहीं से सिर्फ 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी कि इसे बारीक सनाही की हुई है, सबटल इंजीनियरिंग। उसको फिर मैंने खोल के बयान किया कि सबटल इंजीनियरिंग क्या है, क्या है।
पूरी दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम जो है जेम्स वेब तक को मालिक ने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, अल्लाह अकबर। चमगादड़ के अंदर रख के जेम्स वेब भी उसमें एक्सप्लेन है। ये मौजू भी मैंने किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह बाब ईमान क़िबला ने एक दफा में हदीस सुनाई अकल का रूह क्या है, अकल का नफ्स क्या है, अकल का चेहरा और अकल का दिल। तो इसको ये भी उसी जहान अकबर सीरीज में मैं लाया हूँ। तो वो जब कहेंगे कि अकल का चेहरा रहम जो है ना वो मेहरबानी है, सही। तो जब ये 3 मौजू मैंने किया अभी, वो क्योंकि हमारे इतने मौजूद होते हैं बाब ईमान क़िबला के साथ, को वक्त नहीं मिलता क्योंकि आजकल हमें दूसरे मौजूद में सही। वो जब मैं बैठता हूँ, जब मैंने अभी ये मौजू किया अकल का जो दिल है वो रहमत है, यार वो वहां तक बात गई ना, वहां तक बात गई कि मैंने पेन मैंने फेंक दिया और मुझ पे दिक्कत तारी हो गई कि यार ये मेरे बस से बाहर एक्सप्लेन कर कि कहाँ तक ये आम बात ही नहीं है, ये कहाँ तक चली गई है ये बात। ये दिल के अंदर न्यूरोलॉजिकल सेल, और ये भी जहान अकबर सीरीज में है मेरे, इसको भी मैं उधर ही लाऊंगा जब कभी वक्त मिलेगा कि यार मालिक के तो मतलब 2 जुमलों में ना वो हकीकत आप समझे कि पूरी समंदर कूजे में नहीं कायनात बंद कर देती। हकीकत है, हकीकत है। और उसके बाद बाकी तहकीक करने वालों के लिए कि वो के लिए एक और चीज मिल गई है, मैं वो कुछ और निकाल रहा था आपके लिए, ये बड़ी आपके लिए। कल जो बात आपकी हो रही थी ना, जी जी, ये थी वो बात। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये यहाँ देख ले, ये पूरी रिवाज यहाँ से शुरू होती है, मैं यहाँ तक लेके आए। ये हारून ने इमाम के सामने, एक शख्स ने हारून से पूछा कि तुमने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहद क्यों बनाया है, वजह क्या है? सही। अब वो वजह बता रहे हैं, मेरी एक निहायत ही पसंदीदा कनीज है और मैं अपनी तमाम कनीज़ों में से किसी को इस पर तरजीह नहीं देता। सूरत हाल यह है कि वो कई मरतबा हामला हुई है मगर हर बार उसका हमल साकत हो गया और अब भी वो हामला है। आप अलैहिस्सलाम इसके लिए कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे इसका हमल सलामत रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अस्कात से ना डरो, हमल सलामत रहेगा और इसके बतन से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो शक्ल और सूरत में अपनी माँ से मुशाबा होगा। इसके दाएं हाथ में एक ज़्यादा उंगली होगी जो बिल्कुल सीधी होगी और इसके बाएं पाँव में एक ज़ायद उंगली होगी जो ढीली ढाली होगी। ये सुनकर मैंने दिल में कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। जब वक्त हमल पूरा हुआ तो इस कनीज़ के बतन से एक लड़का पैदा हुआ जो अपनी माँ के मुशाबे था और आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इसके दाएं हाथ की 6 उंगलियां और बाएं पाँव की भी 6 उंगलियां थी। अब तुम मुझे बताओ कि इसे वली अहद की तकरीरी पर मैं फिर भी लायक मलामत हूँ? मैंने अगर किया है, उनको वली अहद बनाया है, तो बताओ मैंने गलत कहाँ किया है? सही सही। तो अब इमाम ने उसको निशानी दी है, तो अगर उस बात को आप देखेंगे, इससे मैच करेंगे तो टकरा जाएगी। जी जी बिल्कुल। लेकिन किबला ये जो बच्चे की विलादत हुई, इसके यहाँ क्या इसके कोई आसार और हालात मिलते हैं? किसकी इस बच्चे की जो विलादत का जिक्र है, हाँ बिल्कुल हालात और वाक़यात मिलते हैं जी, बहुत सी किताबों के अंदर मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत सी किताब। अच्छा, ये मोमन था, ये मौला का बड़ा मानने वाला था, इसकी माँ भी। अब मेरा सवाल का मकसद ही यही था। हाँ जी, एक तो मौला ने जो है वो समझ ले कि एक ये नस कायम हो रही है ना इल्म गैब पर, हाँ जी, जो कि मामून कायम कर रहा है मलऊन। अच्छा, दूसरा ये कि मैं हालात से इसलिए जानना चाह रहा था आपसे, ये सवाल मैंने किया कि आया कि देखें कि जब मासूम नस कायम कर रहे हैं किसी पर, तो उसकी ज़िंदगी के बारे में भी तो देखा जाए। फिर वही कह रहा हूँ ना कि इसकी ज़िंदगी से हमको ये पता चलता है कि ये 4 बनु अब्बास में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिनमें एक शख्स ये है कि ये आइमा के बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। फिर तो वो जाहिर है कि वो उसूल जो है वो मुतलकन हम उसको हर एक के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि वो उसको देखना पड़ेगा, मुतलक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है वो हदीस में आपको बता रहा था ना, जब इमाम ने उस पर, क्योंकि हारून ने ये दावा किया था कि कुरान में शराब का तो जिक्र ही नहीं आया, जी जी यही बात। खमर का जिक्र आया, तो खमर तो हराम नहीं होती। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको एक कुरान से एक आयत दी थी, उसमें लफ्ज़ शक्कर आया था। सही तो इमाम ने उस आयत से साबित किया कि यहाँ इस मानी में ये शराब हराम है। सही सही। फिर इमाम ने फरमाया कि हर वो चीज जो नशा आवर है, जिससे इंसान का अकल जायल हो जाता है, पहचान, रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है, वो हराम है। तो फकत तो शराब को ना ले। जी जी, यानी हर वो रिवायत ये कि कुल्लू मस्कर हराम, ऐसी है रिवायत। जी 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 बिल्कुल। हर नशा आवर चीज हराम है। जी जी, मैं आप जा रहा हूँ ऊपर, अभी किसी ने कोई और किताब का कोई हवाला देखना है तो प्लीज बता दें, फिर मैं ऊपर जाके आराम करूँगा। सैयद, इस किताब का क्या नाम था? अयून अखबार उल रजा। अयून अखबार। सर क्वेश्चन ये है, चैप्टर आप कौन सा बता रहे हैं सर जी? मैं तो ये जो जिल्द 1 है कि 2 है सर? ये सेकंड जिल्द के अंदर है। सर मैं सारी फर्स्ट को देख रहा चलो बात में कर लेंगे, कोई मसले बाद में फिर इंशाल्लाह बात होगी। कोई इशू नहीं सर। ये कोई बाइक को बात कर रहे हैं जी। एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान मालिक। अच्छा, एक मेरा सवाल है जनाब, अगर जी। देखिए हज नहीं इंसान कर सकता, तो हज मैं कह रहा हूँ इंसान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, इस्तिताअत नहीं रखता तो ना करे, ऐसे ही है किबला? जी 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 सही है जी। ज़कात नहीं दे सकता इंसान, जी। तो जरूरी तो नहीं ना सिंपल पैसे कहें कि हर वो चीज जिसमें इस्तिताअत नहीं है, जो फर्ज है इस्तिताअत पर फर्ज है, उसकी इस्तिताअत नहीं है तो फर्ज नहीं है जी। हाँ देखिए, रोजा जो है वो भी इंसान अगर नहीं रख सकता तो फिर बीमार है तो बीमारी में माँ समझ ना रखे। लेकिन किबला इस सवाल ये है कि नमाज में ही क्यों इतनी सख्ती है, और नमाज ही क्यों मतलब कि छोड़ने की गुंजाइश क्यों नहीं है? किसने कहा कि नमाज में 2 कसर नहीं है? सर जी, छोड़ना मतलब बाद में पढ़नी तो है ना, कज़ा भी है, कसर भी है, तो आपने क्या दीगर चीजों में आपने समझ लिया कि उनमें बिल्कुल माफी है? नहीं सर, देखिए मैंने सवाल ये किया है, मैं समझा नहीं सका। ओके जी, मैं समझा नहीं सका। हाँ ठीक, मैं ये नहीं कहता आपको समझ नहीं आई, आप आलिम दीन, आपको समझ आ जाए। नहीं, मैं आलिम दीन नहीं, अगर आपको गलतफहमी हो रही है तो पहले दूर कर ले, मैं कोई आलिम दीन नहीं। हाँ, मुझे लगता है ना, क्योंकि आपके पास जितना इल्म है आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन देखें अगर इंसान नमाज ना पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि कज़ा हो जाए, नमाज पढ़नी है जी। हाँ, नमाज छोड़ने का गुनाह है बहुत सख्त जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छुट्टी इसकी क्यों नहीं नमाज की? अगर इंसान बीमार है, जो मर्जी है, जब तक उसने मरना नहीं नमाज पढ़नी है, चाहे अशारे के साथ पढ़े। देखिए, मैं यहाँ तक पहली बात तो ये बता दूं आपको कि आप जिस सवाल को लेके आ रही है वो आपके लिए खुद बड़ा एक अजीब हो जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल दे दी तो ताकि आपका सवाल सिमट जाए। ये बताएं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे थे जी, तो उस वक्त जनाब हुर जो है वो किसके लश्कर में थे? वो उसके यजीद के लश्कर में थे। ओके, तो जो यजीद के लश्कर में उन्होंने जो जितनी भी नमाजें पढ़ी थी, क्या वो कबूल थी? नहीं, वो कहाँ कबूल होनी थी। ओके, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब ये बताएं कि जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में आए तो उन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी थी? वाह वाह वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। ठीक है, तो मेरे भाई इन चीजों को ना देखें, जो सबसे मेन चीज है ना, ये दिमाग में रखिए, हमारे पास जिस चीज में कमी कबूल नहीं होगी ना, उसका नाम है असूल दीन। फरुआत दीन में जितनी भी कोताहियां आपकी होंगी ना, वो काबिल कबूल है, वो अल्लाह उनको माफ कर देगा। असूल दीन एक ऐसी चीज है जिसमें कमी है ही नहीं। और इन्हीं अहादीस में अगर देखें ना, तो असूल काफी के अंदर पूरा चैप्टर है। जब इमाम से पूछा गया कि नमाज अल्लाह की, रोजा